اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ معصومہ کی نگاہیں گھڑی کی سوئیوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ جو ہی گھڑی نے 11 بجائے اس نے منتظر نگاہوں سے صحن سے بلائی منزل سے آتی ہوئی سیڑھیوں پر نگاہ ڈالی۔ زینہ عبور کرتی ہیرا ایک ادا سے نیچے آ رہی تھی۔ حشاش بشاش چہرہ، خوبصورت مسکان لیے وہ نیچے آئی۔ کیسی ہیں بھابی، جاگ گئیں آپ؟ معصومہ کو اس کا یہ سوال ایک آنگ نہ بھایا تھا، کیونکہ وہ تو صبح اذانوں کے وقت سے جاگی گھر گھرستی کے کاموں میں الجھی ہوئی تھی، جبکہ ہیرا کی صبح اب ہوئی تھی اور پوری نیند لینے کے بعد جو بشاشت آتی ہے وہ اس کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ معصومہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ اس کا لب کھولنے کو بھی دل نہ چاہا۔ یوں بھی اسے ہیرا جیسی تیز ترار لڑکی سے بات کرنے کا کوئی شوق نہ تھا۔ ہیرا نے آرام سے فریج کھولا، گندا ہوا آٹا نکالا، پیڑا بنایا اور حیدر کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ حیدر اتنی دیر میں نیچے آیا۔ اس کی گود میں عشا تھی، ان کی اکلوتی اولاد۔ 1 سالہ عشا مطمئن سی باپ کی گود میں تھی۔ تبھی ہیرا نے ایک ادا بے نیازی سے ناشتہ میز پر دھرا اور عشا کو معصومہ کو پکڑاتے ہوئے بولی، بھابی عشا کو پکڑ لیں، ذرا ہم دونوں ناشتہ کر لیں۔ معصومہ محو حیرت لب بستہ دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ شدید تھکان کی بعد وہ بچوں کے اسکول سے آنے سے پہلے کچھ دیر لیٹنا اور تازہ دم ہونا چاہتی ہے، مگر ہمیشہ کی طرح اس کے خیالات دل میں ہی رہ گئے اور وہ لب کچلتی عشا کو تھامے کمرے میں آ گئی۔ عشا کو کھلونے تھما دیے تھے اور وہ کھلونوں سے کھیلنے لگی تھی۔ ساتھ ہی بیبی کاٹ میں زینب سو رہی تھی۔ زینب پہ نظر پڑتے ہی معصومہ کی نگاہوں میں ممتا امڑ آئی تھی۔ معصومہ 3 بچوں کی ماں تھی، موسیٰ، سونیا اور زینب، جو ابھی صرف چند ماہ ہی کی تھی۔ موسیٰ اور سونیا دونوں اسکول جاتے تھے، اس لیے معصومہ کو انہیں اسکول بھیجنے کے لیے روز صبح جلدی جاگنا پڑتا تھا۔ معصومہ اور اشر دونوں میاں بیوی اس 5 مرلے کے گھر میں تنہا رہتے تھے، مگر 1 ماہ پہلے اس کے چھوٹے بھائی حیدر کو بھی کراچی میں نوکری مل گئی تھی، اس لیے حیدر بھی مستقل رہائش کی غرض سے یہاں آ گیا تھا۔ یوں بھی اوپر کی منزل خالی تھی، سو اشر نے مناسب سمجھا کہ اوپر کا پورشن بھائی کو رہنے کے لیے دے دیا جائے۔ وہاں ایک کمرہ، اٹیچ باتھ اور ایک کچن بھی تھا، مگر اس میں سامان نہ تھا، اس لیے اشر اور حیدر کی بیویاں یعنی ہیرا اور معصومہ دونوں نیچے والا کچن استعمال کرتی تھی۔ معصومہ کی اشر اور 3 بچوں کے ساتھ پہلے ہی بہت ذمہ داریاں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ ہیرا کے آ جانے سے اسے کچھ سکون میسر ہوگا، مگر ہیرا کے آ جانے سے نہ صرف اسے ذہنی سکون سے محروم ہونا پڑا بلکہ جسمانی سکون بھی غارت ہو کر رہ گیا تھا۔ جو تھوڑا بہت وقت اسے ملتا تھا کہ وہ اپنی کمر سیدھی کر لے تاکہ دوبارہ چاقو چوبند ہو کر ذمہ داریاں نبھا سکے، وہ وقت ہیرا اور عشا کی خدمت گزاری میں صرف ہو رہا تھا۔ معصومہ کا دل اس وقت خوب کڑکتا تھا جب سارے ہفتے کے برتن خود اسے ہیرا کے کمرے سے جا کر لانے پڑتے تھے۔ پلیٹ میں بغیر ڈھکے چاول نہ جانے کب سے پڑے ہوئے تھے، روٹیوں کے ٹکڑے دوسری پلیٹ میں منہ چڑھا رہے تھے، کئی کپ جو چائے پینے کے بعد گندے پڑے تھے۔ معصومہ سارے برتن نیچے لا کر دھوتی تھی۔ گھر میں کوئی بھی برتن گندا پڑا ہوتا تو اسے شدید کوفت ہوتی تھی، جبکہ ہیرا اس معاملے میں نہ صرف لاپرواہ تھی بلکہ کافی بے حس بھی ثابت ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ تھی کہ حیدر بھی آنکھیں بند کیے بیوی کا غلام بنا بیٹھا تھا، جبکہ اشر ہر معاملے میں معصومہ کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، چاہے اس میں معصومہ کا کوئی قصور ہو یا نہ ہو۔ دوسرے لفظوں میں اشر کو معصومہ کی تذلیل کر کے دلی سکون ملتا تھا، جبکہ حیدر ہیرا کے سامنے چون چرا بھی نہ کیا کرتا تھا۔ جیسا ہیرا کرنے کو کہتی تھی ویسا ہی کرتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ اس کا بے دام غلام تھا، شوہر نہیں۔ روزانہ ہیرا کو نیچے صاف شفاف کچن ملتا تھا۔ برتن جو رات کو سینک میں پڑے ہوتے تھے وہ صبح تک معصومہ صاف کر چکی ہوتی تھی۔ ہر چیز ٹھکانے پر رکھی ملتی تھی۔ پھر بھلا 2 پراٹھے بنانے میں کیا دیر لگتی؟ پھر ناشتہ کرنے اور میاں کو رخصت کرنے کے بعد وہ پھر عشا کو لے کر اوپر والے پورشن میں گم ہو جاتی۔ پھر اس کی آمد تب ہی ہوتی جب دوپہر کا کھانا تیار ہو چکا ہوتا۔ عموماً معصومہ اس وقت روٹیاں پکا رہی ہوتی اور ہیرا کوئی ایسی ترکیب بڑھاتی کہ عشا رونے لگتی اور ہیرا آرام سے پکارتی، بھابی روٹی بنا رہی ہیں، میری بھی بنا دیں گی؟ اب اس سوالیہ نشان کے بعد انکار کی کوئی گنجائش ہی نہ بچتی تھی۔ یوں بھی معصومہ اپنے نام کی طرح بہت معصوم اور بے ضرر ثابت ہو رہی تھی۔ ہیرا آرام سے تازہ گرم روٹی لیتی اور عشا کو سامنے بٹھا کر کھانے لگتی۔ کھاتے ساتھ ہی وہ دودھ
पत्ती की फरमाइश भी कर देती। मासूमा चाय की कप खुद भी तलब महसूस कर रही होती थी। 2 मिनट में दूध डालकर चाय का बर्तन चूल्हे पर चढ़ा देती थी। मासूमा की सोच में शफाफियत थी। वो सोचती थी कि अपने बच्चों के लिए तो खाना बना ही रही होती थी, तो फिर भला 2 और रोटियां बनाने या चाय बनाने में आखिर क्या मुजायका है। प्रॉब्लम तब होती थी जब हर खाने के, चाय के और ईशा के लिए दिए के बर्तन बेनियाजी से छोड़ जाती थी। मासूमा ने अपने बच्चों का, जो अभी अभी स्कूल से आए थे, यूनिफॉर्म तब्दील किया, मुंह हाथ धुलवाया और खाना लाकर खिलाने लगी। बच्चे जिद्दी थे। उनका तकाजा होता था कि वो आराम से बैठकर कार्टून देखें और माँ नवाले बना बनाकर उनके मुंह में डालती जाए। मासूमा भी मान जाती थी। इतने में ज़ैनब चीख मारकर जाग जाती थी। मासूमा का खाना वहीं रह जाता था और वो ज़ैनब के कामों में जुट जाती थी। वहाँ से फरागत मिलती तो बच्चों का होमवर्क और कुछ मुज़ामिन का टेस्ट, जिसकी तैयारी में खासा वक्त लग जाता था, उस सारे दौरानिए में हिरा रोपोशी का सफर जारी रखती और जब मर्दों के आने का वक्त होता तो सज धज कर नीचे आ जाती। भाभी जरा अपनी पिंक लिपस्टिक दे दे और ब्राउन पेंसिल भी। हिरा का अंदाज टोटो होता। मासूमा फकत उसे ठंडी आह भर कर देख कर रह जाती। वहाँ पड़ी है, ले लो। मासूमा जानती थी कि ये महज दिखावा है और हिरा सारे रास्ते जानती है, तभी तो इतनी मालूमात रखती थी। जबकि मासूमा सादा से हुलिये में इधर उधर फिर रही होती थी और इतने में अशर आ जाता था। जबकि हिरा का चमक छल्लों वाला गेटअप अशर की नजरों में जरूर आता था। हैदर की मुल्तफित तबीयत, हिरा का अटकेलिया करना अशर को माजी के दरीचों में ले जाता था। मगर मासूमा इन सब बातों से बेनियाज अशर के सुबह के कपड़े प्रेस कर रही होती थी। जबकि मासूमा को पता था कि हैदर अपने कपड़े खुद प्रेस कर लेगा, नहीं तो उसे आवाज देगा, भाभी ये शर्ट तो प्रेस कर दें, और मासूमा से इनकार ना होता। मुरव्वत तो जैसे मासूमा ही के लिए रह गई थी। जिंदगी शायद यूं ही रवां दवां रहती और मासूमा, जो हिरा की चालाकियां और मकारियां खूब समझने लगी थी, उन पे बहुत कुटती थी। मगर यूं हुआ कि अजरा आपा की आमद हो गई। अजरा आपा इन दोनों की बड़ी नंद थी, जो लाहौर में मुकीम थी और चंद दिनों के लिए अपनी भाभीयों से मिलने के लिए आई थी। अजरा आपा ने एक दिन मासूमा की सब मसरूफियात का जायजा लिया और हिरा का बेनियाजी वाला अंदाज भी देखा, पर सोच निगाहों में गहरी फिक्र पोशीदा थी। अजरा आपा को मासूमा का यूं गधों की तरह काम करना बिल्कुल पसंद न आया। उनको दिली गम ने मगमूम कर दिया था। अजरा आपा को अपना माजी याद आ गया था, जब वो भी यूं ससुराली रिश्तेदारों की आओ भगत किया करती थी। उन्हें कोई सिला न मिला था, बल्कि सबने उसे एक खराज समझकर वसूल किया था। अजरा आपा ने फैसला कर लिया कि वो मासूमा को हिरा की चालाकियों की भेंट नहीं चढ़ने देगी। वो इसी सोच में गुम थी कि कहां से आगाज करे। अल्लाह ने आज खुद ही एक राह निकाल दी। वो कहते हैं ना कि बीच में मंझधार में डूबने वाला अगर साई ना करे, कोई दूसरा उसकी मदद नहीं कर सकता। उसको खुद भी हाथ पांव चलाने पड़ते हैं, तभी राह निकलती है। दुआ के साथ साथ तदबीर भी करनी पड़ती है। अजरा आपा को एक सुनहरी मौका नजर आया तो वो मुस्कुरा दी थी। हुआ यूं कि अजरा आपा के आते ही हिरा ने बीमारी का ऐसा रोना रोया कि सारे काम खुद ब खुद मासूमा की जिम्मेदारी बन गए थे। यूं भी हिरा तो लाताल्लुकी की जिंदगी गुजार रही थी। फिर उस वक्त तो इंतहा हो गई जब हिरा ने अपने, हैदर और अपने बच्चों के कपड़ों का एक अंबार लाकर मासूमा को दे दिया। भाभी आप ये कपड़े धो देंगी, मेरी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है, कमजोरी है और चक्कर आ रहे हैं। अजरा खामोश थी। वो इस तमाशे को इंतहा की हद तक देखने की मुतमनी थी। मासूमा जो थकन से चूर अभी अभी कामों से फरागत हासिल करके मुतमईन थी कि अब आराम करेगी, बिल्कुल होंक चेहरा लिए वो उसे तके जा रही थी। चाहती तो साफ बात करती कि थकी हुई हूँ, मगर थकन का लफ्ज हमेशा की तरह उसकी जुबान से अदा ना हुआ था और अपने नातवा कमजोर जिस्म को घसीटते हुए गठड़ियाँ खोलकर कपड़े निकालने लगी। बच्चे के कपड़े अलग किए, बड़ों के अलग, और वॉशिंग मशीन लगाकर कपड़े धोने लगी। 2 घंटे तक वो कपड़े धोती रही और जब उसने काम खत्म किया तो उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी। सारे कपड़े भीग गए थे और ज़ैनब भी रो रो कर दूध का तकाजा कर रही थी। अजरा बगौर इस कार्रवाई को मुलाहिजा कर रही थी। फिर हिरा पानी में हाथ नहीं डाल रही थी कि कहीं उसे ठंड न लग जाए। मासूमा ज़ैनब को थपक थपक कर सुलाने में मसरूफ थी जब हिरा ने ईशा को भी उसे थमा दिया। भाभी मैं जरा नहाने जा रही हूँ, हैदर आने वाले हैं और वो मुझे तैयार नहीं देखेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कबल इसके कि वो कोई जवाब देती, वो नहाने वॉशरूम में घुस चुकी थी।
अब यक ना शुद्ध दो शुद्ध। दोनों बच्चियां मुंह फाड़े रो रही थी, जबकि मासूमा का खुद भी बैन करने को दिल चाह रहा था। अजरा ने बेहद तासुफ से ये सब मंजर देखा। उन्होंने ईशा को थामा और मासूमा के कंधे पर हाथ रखते हुए ठहरे हुए लहजे में कहा, कब तक यूं खुद को तकलीफ देती रहोगी? ये दुनिया बहुत जालिम है, इतनी मीठी भी ना बनो कि तुमको आराम से निगल लिया जाए। अजरा आपा की हमदर्दी सुनकर वो फपक फपक कर रो दी थी। आंसू उसके गालों पर तवातर से बह रहे थे। मासूमा ने जो बेबसी की तस्वीर बनी हुई थी इल्तिजा की, अगर मेरे कहने पर चलोगी तो तुमको इन सारी मुश्किलात का हल मिल जाएगा। बोलो दोगी मेरा साथ? अगर हाँ कहती हो तो हो जाओ शुरू। अजरा आपा की बात पर उसने सर हिलाया था। थोड़ी देर बाद हीरा बात से बाहर निकली, ईशा को थामा और अपने कमरे में मेकअप करने चली गई। अजरा आपा ने मासूमा को साथ बिठा लिया और नासहाना अंदाज में बोली। मासूमा उनके एक एक लफ्ज को दिल में जज्ब कर रही थी। फिर अगला दिन तुलू हुआ जैसे बाकी दिन होते हैं, मगर इस दिन कुछ ऐसा नया होना था जो बाकी दिनों में नहीं हुआ था। अगरचे आज भी मासूमा घड़ी की सुइयों पर नजर टिकाकर बैठी थी। जैसे ही घड़ी ने 11 बजे का हिंसा अबूर किया, हीरा मुस्कुराती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई। उसने एक मुस्कुराहट मासूमा की तरफ भी उछाली थी। टीवी के सामने बैठी टॉक शो देखती मासूमा ने भी जवाबन मुस्कुराहट पेश की थी। अजरा आपा कदरे दूर बैठी किसी रसाले की वर्क गर्दानी में मसरूफ थी। हीरा ने किचन में कदम रखा। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने सिंक में बर्तनों का अंबार देखा। उसने नाक भू चढ़ाकर एक कप निकाला और उसे धोया। नागवारी का एहसास उसके चेहरे से आया था। फिर फ्रिज खोलकर आटा लेने के लिए नजरें दौड़ाई, मगर आटा वहाँ था ही नहीं। वो बेसाख्ता पलटी थी। भाभी आटा नहीं है क्या? लहजे में बेयकीनी फैली थी। मासूमा ने उसकी हैरत से हज उठाया था। हाँ बिल्कुल है, बहुत आटा है, कनस्तर में से निकाल कर गूंद लो। हीरा को जवाब देती मासूमा इस मासूमा से यकसर मुख्तलिफ लग रही थी। हीरा बुरा सा मुंह बनाकर पाँव पटकती ऊपर चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही हैदर तेजी से जीना अबूर करता नीचे आया। भाभी हीरा की तबीयत जरा खराब है, कमजोरी है, उसे नाश्ता नहीं बन सका, आप प्लीज 2 पराठे और आमलेट बना दें। मासूमा से पहले अजरा आपा ने जवाब दिया। क्यों, ऐसी कौन सी कमजोरी हो गई? हीरा को सरशाम नहाते, तैयार होते और खाते पीते वक्त तो कोई कमजोरी नहीं होती। मासूमा तुम ऐसा करो, मुझे वो फिरोजी सूट लाकर दो जिसके बटन टांकने हैं। लो जी, किस्सा ही खत्म हो गया था। अब हैदर को नाकाम वापस लौटना पड़ा था। फिर हैदर तैयार होकर भूखा ही ऑफिस चला गया था, बिना शर्ट प्रेस कराए, क्योंकि मुलाजिम मासूमा तो मसरूफ थी। दोपहर को जब हीरा के पेट में भूख से चूहे दौड़ने लगे तो वो नीचे आई थी। उसका उड़ा हुआ चेहरा इस बात की दलील थी कि उसे जोरों की भूख लगी थी। किचन में सालन के लिए जब देगची का ढक्कन उठाया तो साफ शफाफ देगची मुँह चिढ़ा रही थी। भाभी आपने खाना नहीं बनाया? हीरा का गुस्सा दीदी था। लहजा भर कर तो उसकी बदतमीजी भरे लहजे ने मासूमा को भी चौंका दिया था। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तबीयत सिर्फ तुम्हारी खराब हो सकती है? हीरा उसका लहजा जताता हुआ था। वो कोई सख्त जवाब देने वाली थी, मगर बड़ी नंद को देखकर लब भींच लिए। अजरा आपा उसे सख्त नजरों से देख रही थी। वो कभी कीनातोज नजरों से देखती हुई ऊपर वापस चली गई। मासूमा अजरा को देखकर मुस्कुराई थी। फिर जब बच्चे स्कूल से लौटे तो अजरा आपा ने जो चिकन सैंडविच बनाकर हॉट पॉट में रखे थे वो निकाल लिए। बच्चों आ जाओ और आज फुप्पो के हाथ के बने हुए सैंडविच खाओ और मजे करो। बच्चे बहुत खुश हुए। आज मासूमा को भी आराम करने का वक्त मिला था। इतना सारा दिन था और काम भी न थे। फिर शाम को हीरा नया सूट जेब तन करके नमूदार हुई। मासूमा सामने ही लेटी हुई थी सोफे पर। यकीनन हीरा ने गली के किसी बच्चे से नान कबाब मंगवा कर उस पर गुजारा कर लिया था और अब उसे यकीन था कि अशर के लिए तो खाना बनाया ही होगा। मगर मासूमा को लेटा देखकर वो ठटकी थी। जाओ खाना बनाओ किचन में। अजरा आपा की बात पर वो मजबूरन किचन में आई थी। खाना बनाना तो उसे आता ही ना था। सोचा कि चलो कोरमा ही बना लेती हूँ। कोरमा बनाते हुए उसकी हालत खराब हो गई थी। उसकी आंखें पानी से भर गई थी और टमाटर उसके कपड़ों को दागदार कर चुके थे। हल्दी उसके चेहरे पर थी। खुदा खुदा करके उसने सालन बनाया तो सामने खड़ी मासूमा पर उसकी नजर पड़ी। हल्के नफीस से काम वाले कपड़ों में वो बहुत हसीन लग रही थी। बच्चे भी पुरजोश से थे। अजरा आपा भी तैयार सी लगी थी। जब अशर आया तो मुस्कुरा कर एक गहरी नजर अपनी बेगम पर डाली जो बेहद प्यारी लग रही थी। हर वक्त मैले कुचैले हुलिये में रहने वाली आज बहुत अच्छी लग रही थी। अशर ने पुरमुसरत अंदाज में उसे देखा था। मासूमा शर्मा गई थी। अच्छा, आज हम सब खाना खाने बाहर जा रहे हैं। खाने के बाद तुम मुझे आमना के यहाँ छोड़ देना और तुम हीरा हैदर के साथ जो तुमने जला हुआ कोरमा बनाया है वो खा लेना। अजरा आपा की बात पर उन्हें सख्त गुस्सीले अंदाज में देख रही थी। तब हैदर
भी आ गया था और अपनी बीवी के हुलिये को देखकर हैरत ज़दा रह गया था। अभी तो उसके हाथ के जले हुए पकवान भी थे उसे हैरान करने को। आजरा आबा के पीछे मैं, अशर और हमारे बच्चे मुस्कुराते हुए चल रहे थे। हीरा खोए खोए अंदाज में उन्हें जाता देख रही थी कि ईशा की चीख ने उसे चौंका दिया। ओह, अभी ईशा को भी देखना है। इस दफा तो उसे सचमुच चक्कर आने लगे और कमजोरी महसूस होने लगी।